Namaskar. In this lecture on mechanics, we will talk about the Lagrange's equations of motion, and we'll derive these equations by differential principle, which is the D'Alembert's principle. This principle is also called differential principle. As I told you in my previous lectures that we are gradually moving from Newtonian mechanics to Lagrangian mechanics. These are actually the two ways to solve the mechanical systems. A system which may be solved with the help of Newtonian mechanics under the conditions of Newtonian mechanics may also be solved by Lagrangian methods, which is called the Lagrangian mechanics. So, after deriving the Lagrange's equations of motion and certain applications of Lagrange's equations, we'll try to find that what is the difference between the two, between the Lagrangian mechanics and the Newtonian mechanics. The one basic difference which we'll see in this lecture also, that Newtonian mechanics is based on the conventional coordinates. Secondly, Newtonian mechanics is based on the forces. In Newton's second law of motion, in first law of motion, third law of motion, everywhere he talks about the forces. Forces are responsible to change the state of a system. Forces are responsible for the action and reaction. So everywhere he talks about the forces. Secondly, his laws are based on the forces. But as I told you that there are constraints, there are constant forces, or there may be the forces which are hidden, which are not possible to express explicitly. So Lagrangian mechanics is a new way to solve these mechanical systems in the inertial frame in such a way that forces are no need to be considered. Whatever is the contribution of force is reflected in the derivations, is reflected finally in the equations of motion. There is no need to consider the forces explicitly. This is a big advantage of Lagrangian mechanics. So first of all, we'll try to derive these equations of motion from D'Alembert's principle. In D'Alembert's principle, we said that there were certain conditions. So D'Alembert's principle says that if the first condition for the D'Alembert principle was that if the forces working on a system of particles, हम सिस्टम की ही बात करेंगे, on a system of particles are in equilibrium. And the virtual work done by the constant forces is zero. There is no work done by the constant forces. Then the virtual work, virtual word usually use नहीं किया जाता लेकिन understood है इस principle में, then the virtual work done by the applied forces and reversed effective forces, reversed effective forces is zero. This is D'Alembert's principle. We derived this in mathematical form and we considered if there is a system of n particles
you may take it to be subjected to k constants, subjected to k constants, because by taking k to be 0 you can say that there are no constants. So it is a generalized case, k constants k constants such that the virtual displacement is given by delta Ri. It simply means that positions are represented by Ri. Then mathematically, how we write? Fi a minus pi dot delta Ri is equal to 0. I in first term and delta Ri जब मल्टीप्लाई होगा 2 बार हो जाएगा तो डमी हो गया, सेकेंड में भी I और I 2 बार हो जाएगा तो I is a dummy suffix and I can put dot here. ये है मैथमेटिकल फॉर्म में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जहां पर FIA क्या है? दीज आर अप्लाइड फोर्सेस और PI डॉट क्या है? PI dot is rate of change of momentum. So PI is rate of change of momentum, but minus PI dot यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। ये हमने बताया था आपको सब कि कैसे होती हैं रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस वगैरह। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है, इसमें ये है डेल्टा आर आई। मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में भी कि ये जो डेल्टा आर आई है, दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स। और जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें इसे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो हम इसको अभी चेंज करेंगे, डेल्टा आर आई को चेंज करेंगे। कैसे? क्योंकि हमें इसी को चेंज करना है, डेल्टा आर आई को। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट देयर एग्जिस्ट QIs or QJs, J is equal to 1 to n, where what is this n? This n is 3n minus k, such that QJs are independent and sufficient to describe the mechanical system without violating the constants. तो मैकेनिकल सिस्टम को भी डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और इंडिपेंडेंट भी है और कॉन्स्टेंट्स भी वायलेट नहीं हो रही हैं। Then this Ri may be written as a function of these Q, J and time. ठीक है, यहां पर ये क्या कह रहा है? ये डेल्टा आर आई, इसको अगर मैं डेल्टा आर आई लिखूं यहां से, तो दिस इज डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ठीक है, फिर से वही चीज कि यहाँ पर हम एक समेशन लगाएंगे क्योंकि जे 2 बार आ गया और यहाँ जे लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें यहाँ पर तो एक ही फ्री सफिक्स है आई, और अगर आप राइट साइड में देखें
तो फिर से एक ही फ्री सफिक्स है आई, एक ही बार आ रहा है, जे 2 बार आ रहा है, तो समेशन जो कि जे के लिए हो गया, लेकिन एक वेक्टर है जिसमें एक फ्री सफिक्स है, तो दोनों तरफ आई और आई आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है हमारा। हालांकि हम कई बार इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको समझना बार बार जरूरी है। इस थर्ड एक्सप्रेशन को हम उठा करके 1 में रख देंगे, ठीक है। तो 1 एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, और हाँ, हमें रखते समय थोड़ा सा सफिक्सेस का ध्यान रखना है। हमारा एक्सप्रेशन है सिग्मा एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डॉट, यहाँ था डेल्टा आर आई विच इज डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे। अब फिर से हमें इस डॉट को रखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे डॉट कहाँ आएगा। अभी हमारा डॉट यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 0। क्यों? ये अलग से एक वेक्टर है, मुझे इसकी ही इंडिपेंडेंसी की बात करनी है। और जब हम इस पूरे को देखूंगी अभी मैं, तो आप देखना ये भी एक वेक्टर बन रहा है। देखिए कैसे, ये आई एक फ्री सफिक्स, यहाँ पर इसको हाइलाइटर से देखिए आप, पॉइंटर से, ये है फ्री। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो आई और आई ये बन गया डमी, आई डमी बन गया और जे रह गया फ्री। दूसरा वाला टर्म देखिए, पी के साथ आई, डेल्टा आर आई के साथ आई, 2 आई हो गए, आई बन गया डमी और जे अकेला रह जाएगा फ्री। तो इस वाले हिस्से में भी केवल जे फ्री है, तो ये भी एक वेक्टर हो गया जे के रिस्पेक्ट में। इसे अलग से देखो तो इसमें भी जे फ्री है, तो दोनों वेक्टर टर्म हो गए ना। मल्टीप्लाई होने के बाद तो स्केलर बन जाएंगे, लेकिन अभी ये वेक्टर हैं अलग अलग, तो मैंने इसलिए वहां पर एक सिंबल पुट कर दिया था, डॉट का, डॉट लगा दिया था। और अब ये जो हमारे समेशन, ये 2 हो गए, एक आई के लिए और एक जे के लिए, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया, समेशन समेशन। इसको मैं ज़रूरत पड़ी तो पलट भी सकती हूँ, यानी पहले पी आई डॉट लिख लेंगे, वो देखेंगे बाद में, और उसके बाद डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे, ऐसा लिख लिया हमने इसको। अब ये कैसे हमारे क्यू जे, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट, और जब क्यू जे इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा क्यू जे तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, नेचुरली ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। और इसकी इंडिपेंडेंसी की वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी कोफिशिएंट्स है, इसमें हमें एक ध्यान रखना है, एक जो समेशन का सिंबल है वो बाहर आएगा, क्योंकि क्यू जे को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अब जे हो जाएगा और अंदर अब आई हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप कि ये जो समेशन का सिंबल है ये वाला, ये अब इस पूरे को ले रहा है, इस पूरे को ले रहा है, तो ये समेशन के सिंबल के साथ जे लगेगा। और अंदर वाला जो समेशन लगाया है वो इसके लिए लगाया है, ये जो चीज़ है इसके लिए लगाया है, तो इसलिए इस वाले में आई हो जाएगा। यहाँ आई है, देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, इस वाले टर्म में आई के रिस्पेक्ट में समेशन हो रहा है, तो यहाँ आई लगेगा। इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, दोनों आई है, तो यहाँ पर आई लगेगा। तो ये जो अंदर वाला है इसके लिए समेशन आई हो गया, और ओवरऑल के लिए ये जे के रिस्पेक्ट में हो गया, ऐसा हम इसको लिख लेंगे। सो दिस इज 3। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और अब हम एक एक एक्सप्रेशन उठाएं इसमें से। इसको हम लिख लेते हैं समेशन एफ आई ए डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ठीक। यहां पर समेशन देख लो, आई और आई, तो ये आई के लिए लगेगा। मैंने क्या किया, इसमें से पहला टर्म उठाया और ये वाला, इन दोनों को आपस में एक साथ ले लिया, और यहाँ फिर से मैं कोई डॉट वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। जो ये वाला टर्म है, ये जो टर्म है ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 है, तो हम अभी कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, इसी तरह से इसको डील करेंगे। इस एक्सप्रेशन में जो हमारा एफ आई ए डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे है, ये है क्यू जे। अगर आपको याद हो, हमने जनरलाइज्ड फोर्स डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में,
वहां पर Qj वॉज द जनरलाइज्ड फोर्स, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन Qj के बराबर होता है वहां पर। तो हम यहाँ पर इसको Qj के बराबर लिख देंगे। वेयर Qj इज जनरलाइज्ड फोर्स, ये तो हमें मिल गया। अब हम दूसरा एक्सप्रेशन उठाते हैं, थर्ड का। इन 3 फर्दर इन इक्वेशन 3 फिर हमने दूसरा टर्म उठा लिया, पी आई डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हमने उठाया। और पी आई डॉट का मतलब क्या है? पी आई का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हुआ डी आर आई डी टी, ये वेलोसिटी हो गई। अब मैंने पहले बताया था आपको, इस m में भी हम सफिक्स लगाएंगे, पर इस सफिक्स को हम काउंट नहीं करते हैं। और इसका भी डॉट डेरिवेटिव, क्योंकि p डॉट है, पी आई डॉट है, साथ में डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जी। अब देखिए 3 बार तो नहीं हो गया कोई सफिक्स, 2 से ज्यादा बार तो नहीं हो गया। जब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर i और i, ये तो डमी हो रहा है, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है देखा जाए तो। दूसरा यहाँ पर फिर से एक और i हो गया, हाँ सॉरी हमने कहा था इस i को काउंट नहीं करेंगे। ये i और ये वाला i, ये डमी हो रहा है और j फ्री हो रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें j फ्री है। इस वाले में भी i और i डमी हो रहा है, j फ्री हो रहा है, दोनों तरफ j फ्री है, तो दोनों तरफ एक्सप्रेशन ठीक है। हम केवल क्या करेंगे, यहाँ भी समेशन सिंबल लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू i, और यहाँ भी समेशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू i। m के i को काउंट नहीं किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हमने इसका ये डेरिवेटिव लिख रखा है, डॉट लगा रखा है यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एम आई डी डी टी ऑफ डी आर आई डी टी, एम आई तो कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। ठीक है, हम एक टर्म इसमें अच्छा समेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू आई, ये भी आई है। इसमें हम अब क्या करेंगे, एक टर्म ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक डेरिवेटिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है, डी आर आई डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। यहाँ पर ये डॉट नहीं है, सिंपल लगेगा इस तरह से। देखिए मैं एक टर्म ऐड कर रही हूँ, समेशन एम आई डी आर आई डी टी डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, ये मैंने ऐड किया है। जब ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, एम आई डी आर आई डी टी डी डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। मैंने ये एक एक्सप्रेशन है जिसको ऐड किया है, और ये ही एक्सप्रेशन को माइनस किया है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, इन दोनों को कंबाइन करना था मुझे, इसलिए मैंने ये किया। क्या बनेगा कंबाइन करके, अच्छा हाँ समेशन और देख लो, आई 2 बार जे सिंगल बार, आई 2 बार जे सिंगल बार, आई 2 बार जे सिंगल बार। ठीक है, समेशन सिंबल सही है। इसे मैंने लिखा समेशन एम आई डेरिवेटिव ऑफ डी आर आई डी टी डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। ये हो गया दोनों को मिला करके। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है, इसमें डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे सेकेंड फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है,
ये फर्स्ट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हुआ है। इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही लिख दिया और जो सेकंड फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ये पूरा का पूरा, तो वही यहाँ पे लिख दिया है हमने। उसके बाद माइनस सिग्मा एम आई डी आर आई डी टी डी डी टी ऑफ डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। बस अब थोड़े थोड़े से हमें इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने। हमारे पास एक एक्सप्रेशन था जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो है डी डी टी डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। डेल्टा डेल्टा क्यू जे यहाँ लिखा मैंने, डी आर आई डी टी यहाँ लिखा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो करने में ये क्या बना, ये बन गया डेल्टा डेल्टा क्यू जे, और मैं इसको चाहूँ तो ये लिख दूँ क्योंकि ये आर आई डॉट है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये किया था कि आर आई डॉट निकाला था। आर आई डॉट का मतलब क्या था कि डी डी टी ऑफ आर आई वॉज द फंक्शन ऑफ क्यू जे एंड टाइम। ठीक है, मतलब आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया था टाइम के रिस्पेक्ट में, टोटल डेरिवेटिव लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे आर आई का डेरिवेटिव क्यू जे के रिस्पेक्ट में, और फिर क्यू जे का डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ डी टी टी है। फिर हम आर आई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज क्यू जे डॉट, क्यू जे डॉट है ये, प्लस डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे टी। ये हालांकि हम कर चुके हैं पहले, ये टी है डेल्टा टी। अब देखिए, यहां से हमने शुरू किया और हम यहाँ पे पहुंच गए। इस आर आई डॉट को मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूं डेल्टा आर आई डॉट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगी तो यही तो क्यू जे डॉट है, केवल आर आई तो क्यू जे का फंक्शन है ही नहीं, क्यू जे डॉट का फंक्शन है ही नहीं, तो ये तो रह जाएगा ऐसे, ये तो कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा डेल्टा क्यू जे डॉट ऐसे लिख देंगे हम इसको, प्लस ये जो आर आई है, आर आई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू जे डॉट, तो इसलिए यहाँ हम ऑपरेट ही नहीं करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये कितना बना, डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे, और ये क्या बना, इंटू 1, क्योंकि क्यू जे डॉट को क्यू जे डॉट के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सो इट्स वैल्यू विल बी 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ये जो है, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको मैं लिख रही हूँ डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे इज क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे। ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया है जो हम अपनी इस इक्वेशन में फिफ्थ में यूज करेंगे। ये दो एक्सप्रेशंस आए हमारे पास, 6 और एक आया 7, राइट। तो जहां डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे आ रहा है, यानी ये वाला जो टर्म आ रहा है, यहां पर तो हम यूज कर देंगे 7th, और जहां पर ये वाला आ रहा है, ये वाला, इसको ऐसे एक्सचेंज करके यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंज करने में बनेगा हमारा, ये इसका एक्सप्रेशन आएगा पी आई डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे का, ये आया पी आई डॉट डेल्टा आर आई डेल्टा क्यू जे समेशन विद रिस्पेक्ट टू आई। इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया एम आई डी डी टी ऑफ आर आई डॉट डेल्टा वी आई डेल्टा क्यू जे
माइनस एम आई, और यहाँ हमने एक्सचेंज कर दिया था, तो दिस वाज डेल्टा डेल्टा क्यू जे, और अंदर था वी आई, इसके साथ था डी आर आई डी टी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको चेंज कर दो, एम आई डी डी टी ऑफ, ये आर आई डॉट भी वी आई है, ये डेल्टा वी आई डेल्टा क्यू जे ऑलरेडी है, माइनस एम आई, इसको भी मैं वी आई लिख सकती हूँ, डेल्टा डेल्टा क्यू जे, यहाँ वी आई, और ये भी, यहाँ पर ये क्यू जे डॉट था, वी आई क्यू जे डॉट, एक सेकेंड, ये क्यू जे डॉट है, यहाँ पर डॉट था, ये वी आई है। अब मैं एक बार सिंबल देख लेते हैं, आई 2 बार आ रहा है इसमें, आई के लिए समेशन है, इसमें भी ये आई और ये आई 2 बार आ रहा है, आई के लिए समेशन है, दिस इज अगेन आई, और यहाँ पर भी आई के लिए। अब आगे देखिए, एम आई, इस एम आई को भी मैं अंदर ले लूँ, या पहले मैं ऐसे लिख लूँ, डी डी टी ऑफ डेल्टा डेल्टा क्यू जे डॉट वी आई स्क्वायर, और यहाँ पर कर दूँ हाफ। देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको डिफ्रेंशिएट करो आप क्यू जे डॉट के लिए, तो आप लिखोगे ट्वाइस वी आई, पहले तो ट्वाइस वी आई लिखोगे, 2 से ही 2 कट जाएगा, यहाँ पर आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप पहले लिखोगे ट्वाइस वी आई, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर जो वी आई होगा उसे क्यू जे डॉट के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये ठीक है, हमने जो लिखा है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और हम इसको लिखेंगे माइनस समेशन एम आई, ये जो दोनों हैं इनको फिर से आप लिख सकते हो डेल्टा डेल्टा क्यू जे वी आई स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ, पहले वाले में क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में और दूसरे वाले में क्यू जे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसे भी हम खोल के देख सकते हैं। यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे ट्वाइस वी आई, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वी आई मिल जाएगा, फिर हम वी आई को क्यू जे के लिए करेंगे तो डेल्टा वी आई डेल्टा क्यू जे मिल जाएगा। तो ये दोनों ठीक हो गए एक्सप्रेशंस। और अब हम लिखते हैं इसको फिर से थोड़ा बनाते हैं, डी डी टी ऑफ डेल्टा डेल्टा क्यू जे डॉट हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, ये एम आई भी अंदर ले गए, हाफ भी, माइनस सिग्मा एम आई, सॉरी ये सिग्मा एम आई भी अंदर ले जाना है मुझे, डेल्टा डेल्टा क्यू जे हाफ ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर, अंदर सेम है दोनों में, और है क्या है बाय द वे, डेल्टा डेल्टा क्यू जे डॉट, दिस इज टी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ डॉट लगा हुआ है, माइनस, और अभी देखना मैं समेशन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अभी देखना मैं कैसे इसको बिना समेशन लिखूंगी, डेल्टा डेल्टा क्यू जे एंड अगेन दिस इज टी, ये टी है, टी इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर। जब मैंने इस फॉर्म में लिखा तो मैंने कोई समेशन नहीं लगाया क्योंकि कोई डमी सफिक्स दिखाई नहीं दे रहा, इस वाले टर्म में जे फ्री, इस वाले टर्म में जे फ्री, और जहां से शुरू किया था वहां पर भी जे फ्री, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए। या हमारे पास इसका एक एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम ये जितने भी एक्सप्रेशंस आए हैं इनको यूज करेंगे, ये बन गया डी डी टी ऑफ डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल्टा डेल्टा टी ऑफ डेल्टा क्यू जे, और इसको हम नंबर दे देते हैं 8, ये हो गया 8। अब देखिए ये तो हमारी इसकी वैल्यू आई,
ठीक है। और इसके पहले हमारे पास ये फोर्थ में वैल्यू आ चुकी थी ये वाले टर्म की, ये भी हमने निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। इन दोनों को यहाँ पर हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आएगा, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आएगा क्यू जे, हमारे पास आएगा क्यू जे माइनस डी डी टी ऑफ डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम ये सब रखेंगे फिर से समेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू जे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमने जब क्यू जे को डिफाइन किया था, आप जरा देखिए यहाँ पे, ये जो हमने क्यू जे को डिफाइन किया था विच वॉज जनरलाइज्ड फोर्स, दिस वॉज जनरलाइज्ड फोर्स। तो इसका अभी हम ये देखेंगे कि क्यू जे किस टाइप का है। ठीक है, यहां हमने ये लिख लिया और यहां पर सिंस डेल्टा क्यू जे आर independent for all j, therefore qj माइनस जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो सब सेपरेटली 0 होंगे फॉर ऑल j। ऐसी तो कंडीशन होती है जब हम लिखते हैं C1 अल्फा 1 C2 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 and if alpha 1 alpha 2 alpha 3 are independent then C1 C2 C3 are also 0। यही हमें मैथमेटिक्स लगाना था, जिसकी वजह से हमने ये मेहनत की कि हम इसे डेल्टा क्यूजे के फॉर्म में लाए। अब ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली 0 होंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का वो ये है डी डी टी ऑफ डेल्टा टी डेल्टा क्यूजे डॉट minus delta t delta qj is equal to qg. This is the standard way of writing this expression. अब हम इस एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि जो फोर्सेस है, लेट द फोर्स, एक तो ये जो हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं ना, ये हॉलोनॉमिक सिस्टम से, ये ध्यान रखना है आपको कि हमने ये बताया था कि दो तरीके की दिक्कतें आती हैं जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व करते हैं। पहली दिक्कत ये आती है कि वहां पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। दूसरी दिक्कत ये आती है कि वहां फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं। तो पहली दिक्कत को तो हमने सॉल्व कर लिया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करके एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाई और हमने सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और हम यहाँ पहुंच भी गए इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। दूसरी दिक्कत ये आती है कि वहाँ फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं। तो उन फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स में जब आपके जब आपके जो कांस्टेंट्स हैं वो यदि हॉलोनॉमिक है, उस केस में हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स हमारी उधर ही हेल्प करती है। तो हम कह रहे हैं कि लेट द सिस्टम बी हॉलोनॉमिक एंड कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ये जो क्यू जे है दिस कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे। ये हम पहले से ही डिराइव कर चुके हैं, जो आप थोड़ा सा यहाँ दिखा सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ जे सफिक्स लिखा है तो इसमें भी जे ही लिखना है, आई नहीं लिखना है, सेम आ जाएगा वो। और इसको अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 में, इस क्यू जे की जगह पर ये रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे इज माइनस डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे। ये वी क्या है, वी इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या पोजीशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये डिपेंडेंट, चाहे पोजीशन को एज सच नहीं रिप्रेजेंट करता,
डिपेंडेंट स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है। तो डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे डॉट कैसा है, जीरो है, क्योंकि वी जे है ही नहीं डिपेंडेंट। तो हम इसको इस इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं, 12th में लिख सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब हमने क्या किया, डी डी टी में डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे डॉट के साथ एक टर्म ये लिख ली, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो ज़ीरो है, इसको हमने लिख लिया। और माइनस का सिंबल बाहर ले लो, डेल्टा टी डेल्टा क्यू जे, और इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बन गया माइनस डेल्टा वी डेल्टा क्यू जे। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है हमें कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। ये बना डी डी टी ऑफ डेल्टा डेल्टा क्यू जे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट ऑफ वॉट, ऑफ टी माइनस वी, और यहाँ बना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे ऑफ अगेन टी माइनस वी। Let this t minus v, which is the difference of two energies, t is kinetic energy, v is potential energy, this is defined as L. This L is called, यही वो फंक्शन है जो लैग्रांज ने डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस फंक्शन और लैग्रांजियन, राइट। तो यहां से एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ विच इज कॉल्ड द लैग्रांजेस फंक्शन, और इस फंक्शन की वजह से हमारी जो 13 है वो बन गई डी डी टी डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एल डेल्टा क्यू जे डॉट माइनस डेल्टा एल डेल्टा क्यू जे जीरो। दिस इज कॉल्ड, जे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वेयर जे गोज फ्रॉम 1 to 3n माइनस के। तो ये कायदे से 3n माइनस के इक्वेशंस हैं। यहाँ देखो j फ्री है तो j सारी वैल्यू लेगा, a की फ्री सफिक्स है तो ये वेक्टर है, और इस वेक्टर के कितने कोऑर्डिनेट्स है, इस वेक्टर के ये एक j आ रहा है फ्री, j फ्री, तो एक वेक्टर हो गया, वेक्टर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 3n माइनस के तक, तो इनफैक्ट तो ये 3n माइनस के इक्वेशन हुई, ये इक्वल टू 0 है, तो हमें 3n माइनस के इक्वेशंस मिली, जिनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम डिस्क्राइब हो जाएगा। जो न्यूटन्स इक्वेशंस होती हैं वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस होती हैं, वहां पर आप F इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन लिखते हैं, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और साथ में अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक। आर Lagrange's equations of motion for conservative system। और V क्या है, V is force potential function which is depending upon the generalized coordinate only। बहुत ध्यान रखना है, केवल और केवल generalized coordinate पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं इसी में एक छोटा सा केस ले लेती हूँ, केस 2। If the forces are non-conservative, पहले में था कंजर्वेटिव, अब आपकी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमने ये बताया था कि अगर ऐसा हो जाए, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो जाए, देन तब हमने क्या डिफाइन किया था, देन Qj was defined as ddt of डेल्टा u डेल्टा Qj डॉट माइनस, जो मैंने कहा था आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, Qj, ये था। उस केस में हम ये जो हमने 12वें में यहाँ पर Q की जगह ये रखा था, Q की जगह, इसमें आप देखिए
यहाँ पर हमने ये रखा था कंजर्वेटिव के लिए, इसकी जगह क्या रख जाएगा, इसकी जगह ये रख जाएगा। तो हम 12वें की जगह हमारे पास जो ये 10 था जिसमें ये QJ था, इस QJ की जगह वो वाला सब्स्टिट्यूशन रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, देन 11 implies d dt of delta t delta QJ dot minus t QJ is equal to, QJ की जगह ये पूरा आ जाएगा d dt अब हम फिर से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। यहाँ पर डी डी टी ऑफ डेल्टा डेल्टा QJ डॉट T माइनस U माइनस डेल्टा डेल्टा QJ T माइनस U, इसको लिया यहाँ और इसको लिया इसके साथ, इज इक्वल टू 0। अगेन डेल्टा L डेल्टा QJ डॉट डेल्टा L डेल्टा QJ 0। अगर मैं देखूं तो 14 15 बिल्कुल एक से, देखो 14 और 15 फर्क क्या है, यहाँ पर L है T माइनस V और यहाँ पर L क्या है T माइनस U। V कैसा है, V इज पोजीशन डिपेंडेंट, लेकिन पोजीशन वो नहीं, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर U क्या है, U इज पोजीशन एज वेल एज जनरलाइज्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, एक हम और इसमें बात ये करते हैं कि आप इसमें देखिए, इस वाली शीट पर हमने ये माना था कि QJ जो है वो हमारे पास फोर्सेस है, और QJ कैसी फोर्सेस है, जनरलाइज्ड फोर्सेस। तो अगर इन जनरलाइज्ड फोर्सेस के साथ कुछ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस भी आ जाए, क्योंकि जिन सिस्टम में फ्रिक्शन होता है वहां पर कुछ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो वहां पर यदि नॉन पोटेंशियल फोर्सेस भी बाई चांस है हमारे पास, तो इसमें अगर हम ये कहें कि लेट देयर एग्जिस्ट नॉन पोटेंशियल फोर्सेस टुगेदर विद द पोटेंशियल फोर्सेस, नॉन पोटेंशियल फोर्सेस से QJ डॉट कह दो टुगेदर विद द पोटेंशियल फोर्सेस, then what happens, then Lagrange's equations of motion takes the form, हालांकि आपको नहीं डील करना पड़ेगा इनसे, पर एक आर्टिकल में तो आप दिखाएंगे इसको, क्या होगा, जहां आपका राइट में QJ लिखा था वहां QJ के साथ एक QJ डैश और आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला साइड था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस QJ का हमने बार बार एडजस्टमेंट किया था लेफ्ट साइड के साथ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन Lagrange's इक्वेशंस ऑफ मोशन डी डी टी ऑफ डेल्टा डेल्टा QJ डॉट, यहाँ पर था L माइनस डेल्टा L डेल्टा QJ इज इक्वल टू QJ डैश, वहां था 0, यहाँ आ गया QJ डैश। ये और भी, ये मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप जो यूज करेंगे वो वाली यूज करेंगे जिसमें इक्वल टू 0 आता है। तो ये फाइनली Lagrange's इक्वेशंस ऑफ मोशन है विच आर 3n माइनस k इन नंबर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने ये देखा कि कैसे एक डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल में जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट था उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में चेंज करके कुछ इक्वेशंस पर पहुंचे जो कहलाती हैं Lagrange's इक्वेशंस। और ये इक्वेशन भी
जब यूज की जाएंगी किसी मैकेनिकल सिस्टम के लिए, तो जो सॉल्यूशन न्यूटोनियन मैकेनिक्स देती है बिल्कुल वही सॉल्यूशन ये भी देंगी, लेकिन इनका अपना एक वे है सॉल्व करने का, और आसान होता है क्योंकि फोर्सेस को आपको कहीं नहीं कंसीडर करना। आप देखो, आपको एल लेना है, एल में आपको क्या लेना है, टी माइनस वी और टी माइनस यू, आपको यहाँ डील करना है। तो टी काइनेटिक एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको हर मैकेनिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखनी है, पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, एल की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जस्ट सॉल्व दैट इक्वेशन। तो बहुत इजी वे होता है ये करने का। ये कहलाता है डेरिवेशन ऑफ Lagrange's इक्वेशंस इन विद द हेल्प ऑफ D'Alembert's प्रिंसिपल और with differential principle, differential method, right? Thank you so much.